Hello students, in this video we will continue further with colligative properties. In the previous video we had said that colligative properties are the properties which depend only upon number of solute particles with respect to solvent. So they do not depend upon the nature or the type of solute particles. हम लोगों ने फिर Van't Hoff factor देखा था. Van't Hoff factor incorporates either the dissociation of solute particles और association of solute particles. करेक्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी. हमने ये भी कहा था कि देयर आर 4 colligative properties that we are going to study. First one is relative lowering of vapor pressure. Second one is depression in freezing point. Third one is elevation in boiling point. Fourth one is osmotic pressure. So इस वीडियो में we are going to start off with first colligative property, and that first colligative property is basically relative lowering of vapor pressure. वेपर प्रेशर. अब वेपर प्रेशर क्या होता है हम लोगों ने वैसे ही डिटेल में पढ़ा हुआ है. वी हैव स्टडीड दिस इन डिटेल. ओके, सो लेट्स कंसिडर अ सॉल्यूशन. ओके, हर एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती है. एक होता है सॉल्वेंट. ओके, लेट मी कॉल दैट एज ए, and second one is solute. Let me call that as B. Okay, now I am saying to you that ये जो solute है, the solute is non-volatile in nature. Okay, so solute जो है it is non-volatile. Now when I say it is non-volatile मतलब ये vaporize नहीं होता, इसके vapors नहीं होते, तो vapor pressure of pure B, that is vapor pressure of solute, will be equal to 0. एंड दैट से सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है P नॉट A, लेट मी जस्ट राइट इट एज P नॉट. ओके, सो दिस इज बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ओके, नाउ यहां पे B जो होता है सॉल्यूट, वो A में डिसॉल्व हो जाता है ना. B इज डिसॉल्व्ड इन A. So basically ये जो आपका solution है, this solution behaves like a miscible mixture. Okay, and हम लोग ये भी मानते हैं कि the amount of solute is very very less. तो आपका जो solution है that is highly dilute. Okay, this is a very dilute solution. That is solvent बहुत ज्यादा है, उसके comparison में solute is very very less. So this is very dilute solution. Okay. Now, for miscible mixtures, when you have a very dilute solution, it will behave like an ideal solution. ये फिर ideal solution की तरह behave करता है. And ये जो ideal solution है, इस ideal solution के लिए हम लोग Raoult's law apply कर सकते हैं. Okay. So Raoult's law क्या कहता है? Raoult's law ये कहता है कि total vapor pressure is equal to mole fraction of A into P naught A plus mole fraction of B into P naught B. So ये आपका जो total vapor pressure है P, mole fraction of A is solvent, so mole fraction of solvent. P naught A को हम लोग अभी बस P naught दिख रहा है, plus P naught B तो आपको पता है 0. B is your solute, P naught B is 0, so ये term 0 हो जाएगा. So I can write vapor pressure of solution is mole fraction of solvent into vapor pressure of pure solvent. ये P naught जो है, we know that it is vapor pressure of pure solvent. So this is something that you need to remember. Okay, fine. Now अब आपको ये पता ही है कि ये जो mole fraction होता है, mole fraction is always less than 1. So I know that mole fraction of solvent या किसी का भी mole fraction, whenever you have a mixture, mole fraction is always less than 1. So if mole fraction is less than 1, what I can say is mole fraction of solvent can be written as P of solution divided by vapor pressure of pure solvent is less than 1. So of solution is less than P naught. Now if you look at this, what does this mean? इसका meaning ये होता है, this simply means that vapor pressure
of solution with non-volatile solute okay, is less than the pure vapor pressure of solvent. Pure vapor pressure of solvent. सो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है. इसी चीज को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये आया समझ में आपको? क्योंकि आप जब भी किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होता है कि जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर कम हो जाता है. नाउ व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज ये सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स ना ये सरफेस साइड्स ऑक्यूपाई कर देता है. अभी अगर जो सरफेस के साइड्स ऑक्यूपाई हो गए तो हमें ये पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो सरफेस मॉलिक्यूल्स के वजह से आता है ना. अब सरफेस पे आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो अपने आप से जो ये मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जो चले जाते हैं वो वेपर फेज के मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे. एंड वेपर फेज के अगर जो मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो आपका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. सो आपको समझ में आया क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स दे ऑक्यूपाई द सरफेस एंड बिकॉज दे ऑक्यूपाई द सरफेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस reduces एंड नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस reduces तो अपने आप से जो वेपराइज होंगे वो भी कम हो जाएंगे या जो इवेपोरेट होंगे मॉलिक्यूल्स वो भी कम हो जाएंगे एंड दैट इज व्हाई वेपर प्रेशर विल रिड्यूस. ओके, ये आप नोट कर देना. फाइन. सो एटलीस्ट अब आपको ये समझ में आया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो वेपर प्रेशर होता है दैट वेपर प्रेशर रिड्यूसेस. ओके, फाइन. नाउ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन आई से इट इज बेसिकली कितने अमाउंट से आपका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो वो फाइंड आउट करता है. आपका डेल्टा पी जो है दिस इज बेसिकली इक्वल टू आपका जो ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था दैट वाज पी नॉट माइनस अब सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर है पी सॉल्यूशन. सो दिस इज पी नॉट. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into P naught. So this now becomes equal to, अब P naught common निकालो, 1 minus mole fraction of solvent and 1 minus mole fraction of solvent. See solute mole हमें ये पता है ना mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1. This is what we know. So 1 minus mole fraction of solvent कितना हो जाएगा? It will be equal to mole fraction of solute. So P naught into mole fraction of solute. So this is the second relationship that you need to remember. This is equal to lowering of vapor pressure. ये जो डेल्टा पी है ये मेजर करता है कि वेपर प्रेशर आपका कितने अमाउंट से कम हो रहा है. ओके, नाउ फाइनली व्हेन आई से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. So now let's try to understand what do we mean by relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure, when I say lowering of vapor pressure is equal to lowering of vapor pressure delta P divided by your initial vapor pressure. Your initial vapor pressure is basically vapor pressure of pure solvent, that is P naught. तो ये आया आपको समझ में? So when I say relative lowering of vapor pressure, ये basically परसेंटेज की तरह या फ्रैक्शन की तरह कि कितना वेपर प्रेशर लोअर हो रहा है एज कंपेयर टू योर इनिशियल अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, डेल्टा पी बाय पी नॉट. अब यहां पे आप डेल्टा पी बाय पी नॉट करोगे तो यू विल गेट दिस एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो यू कैन सी दैट ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट.
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, ये बस मोल फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है. ओके, सो दैट इज व्हाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी. आप इसको कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी की तरह मानते हो. ठीक है ना. इसको और अगर जो आपको ग्राफ के फॉर्म में देखना हो तो हमें ये पता ही है ना कि मान लो प्योर सॉल्वेंट के लिए इफ यू हैव टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वेपर प्रेशर ऑन वाई एक्सिस, तो आपको ये पता ही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है ना. जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो अब ओके, एंड इफ दिस इज लेट्स से योर external vapor pressure, so the temperature at which vapor pressure becomes equal to your external pressure, इस temperature को क्या कहते हैं हम लोग, this becomes your boiling point. So this is boiling point of solvent. And this is for pure solvent. ये pure solvent के लिए. अब व्हेन वी टॉक ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि हमें पता ही है सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है. सो एट एनी गिवन टेम्परेचर अगर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है तो सोल्यूशन का कम होगा, सॉल्वेंट का इतना है तो सोल्यूशन का कम होगा. तो सोल्यूशन के लिए जो आप ग्राफ बनाओगे वो ऐसा होगा. दिस इज फॉर सोल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, solid. Can see that vapor pressure is less as compared to pure solvent. To pure solvent. ठीक है. So because vapor pressure is less as compared to pure solvent. अच्छा, अब आपको boiling point अगर जो चेक करना हो तो what is happening to the boiling point, आप इस लाइन को आगे लेके जाओ तो यहां पे यू कैन सी दैट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सोल्यूशन का ज्यादा होगा. सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. इसी ग्राफ पे बेस्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारी सेकेंड कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, बट वो हम लोग बाद में देखेंगे. सो आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ डेल्टा पी बाय पी नॉट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स करते हो ना. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इफ वी अज्यूम दैट solution is very dilute, assumption for very dilute solution, dilute मतलब क्या है कि solute बहुत कम है और solvent बहुत ज्यादा है, तो number of moles of solute will be much smaller than number of moles of solvent. तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को इग्नोर कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो, तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा पी बाय पी नॉट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. नाउ डेल्टा पी तो हमें पता ही है, डेल्टा पी इज बेसिकली प्योर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन के लिए आप बस पी लिखते हो, प्योर सॉल्वेंट के लिए आप पी नॉट लिखते हो, डिवाइडेड बाय पी नॉट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो MW2 divided by W2. 1 represents solute, 2 represents solvent. Okay, so this is the formula that you can remember. Most of the time ये applicable होगा, but sometimes if this is not applicable तो आपको ये proper जो formula है, ये proper formula आपको use करना होगा. So हमने basically 4 relationships देखे. सबसे पहला relationship ये है
मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर. इसके बाद the lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute into P naught. Relative lowering is delta P by P naught. And finally you have this. Okay. Please remember this is a very very simple topic now. अब ये बहुत ही simple है, तो आप ना इसको और एक बार समझ लो. इसके questions भी जो होते हैं वो काफी straight forward होते हैं. The questions are not difficult. Okay. Now this entire analysis was based on the assumption that आपका जो solid solute है it is non-volatile. ठीक है, fine. Now we will go on to the second property, second conjugative property. That second conjugative property is called as, अच्छा before we go on to that, see बहुत बार क्या होता है कि number of particles जो है वो number of particles increase या decrease हो सकता है ना, डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से. जैसे कल हमने देखा था कि NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, CH3COOH उसके पार्टिकल्स बेंजीन में एसोसिएट हो जाता है. सो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो वैल्यूज आपको मिलती है ये थियोरेटिकल होती है. दीज आर योर थियोरेटिकल वैल्यूज. So this is theoretical value of conjugative property. Okay, ये आपकी conjugative property है, and ये जो expression है mole fraction of solute, this gives you the theoretical value of delta P by P naught. But if you look for observed value, delta P by P naught observed is equal to mole fraction of solute multiplied by Van 't Hoff factor I. ठीक है, and delta P by P naught theoretical is simply equal to mole fraction of solute. तो क्या सही है और कौन सा फॉर्मूला गलत है, ये ऑब्जर्व, मतलब एक्चुअल में आपकी जो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो वैन 't Hoff फैक्टर पे डिपेंड करती है. ये फॉर्मूला जो है वो उसको मिस आउट कर देता है. ओके, सो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.2. तो इट इज ऑब्जर्व्ड, ये लोग बात कर रहे हैं ना, तो आपको ये दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज. ओके, सो प्लीज ओनली रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये एक फॉर्मूला आप याद रखो. ठीक है, फाइन. अब we will start off with the next conjugative property, that is elevation in boiling point. Boiling point. अच्छा, for elevation in boiling point हम लोगों ने देखा ही था कि you can see that यहां पे क्या हो रहा है कि because solution का vapor pressure कम है, तो you can see that यहाँ पे जो boiling point है, that boiling point is increasing. So let me write over here. ये जो boiling point है, boiling point has increased. Point of solution increases. सो से फॉर एग्जाम्पल अगर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, आप पानी में नमक ऐड करोगे तो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, शायद 102, 103, 104 डिग्री पे बॉइल होगा. ठीक है, सो इफ यू ऐड सॉल्ट टू वाटर इट विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट इवन एट 101 डिग्री सेल्सियस. अदरवाइज क्या होगा कि नॉर्मली 101 डिग्री सेल्सियस पे पानी वेपराइज हो जाता है. बट वेन यू एड सॉल्ट क्या होता है कि बिकॉज सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहां पे. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, एंड सिंस द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, इन दिस केस I can say that water will remain in liquid state even at higher temperatures. Okay. Now, ये जो boiling point increase हो रहा है, ये जो difference है, this is your original boiling point. Let me write it as T naught. And ये जो final temperature है, let me write this as T. Okay. So,
जैसे पी नॉट और पी दिखा वैसे हमने टी नॉट और टी लिखा है। तो ये जो टी माइनस टी नॉट है, मतलब ये जो डिफरेंस है, द अमाउंट बाय विच टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट it is written as delta TB. Okay, so let me write it over here now. ये जो elevation in boiling point है, it is delta TB. It is equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent, pure solvent. So delta TB can be written as boiling point of solution is T minus boiling point of solvent is T naught. Okay, so आपका boiling point जो है वो increase होता है when you add non-volatile solute. So boiling point increases due to addition of non-volatile solute. ठीक है, fine. Now it is found that, it is experimentally found that ये जो delta TB होता है ना, delta TB, it is directly proportional to the molality of the solution. जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता था, यहां पे इट डिपेंड्स अपॉन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन. ओके, सो आप इसको अ कांस्टेंट इनटू एम लिख सकते हो. ये जो कांस्टेंट होता है इसको लिखा जाता है Kb, एंड Kb डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट, डिपेंड्स ओनली ऑन सॉल्वेंट, नॉट ऑन सोल्यूट. ओके, अच्छा, इस Kb के दो नाम है. आप Kb को इधर ये देख सकते हो, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, so delta TB is equal to Kb into M. M is molality. अच्छा, again in this case, so this is basically delta TB, this becomes your conjugative property, and ये जो formula it is used to measure theoretical value, of conjugative property. अगर जो आपको एक्चुअल वैल्यू मेजर करनी है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखनी है, मेजर करनी है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो डिपेंड करता है ना कितने पार्टिकल्स है, एंड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अफेक्ट हो जाते हैं कि डिसोसिएशन से, एसोसिएशन से. सो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू Kb इंटू मोलालिटी इंटू I, वेयर I इज योर वैन टॉप फैक्टर. ओके, अच्छा, अब अगर जो नॉर्मली हम लोग ये एब्यूलियोस्कोपी क्यों यूज करता है पता है? दिस एब्यूलियोस्कोपी या ये जो सारी थियोरी है, दिस इज यूज टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको पता है कि कोई एक कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होता है. ओके, तो आप उस कंपाउंड को क्या करते हो, सबसे पहले पानी में डिसॉल्व करते हो. दिस इज वाटर. आपका जो भी है अननोन कंपाउंड है, दिस अननोन कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. ओके, दिस इज अननोन. ओके, इसके बाद आप क्या करते हो कि वंस यू डिसॉल्व दिस अननोन कंपाउंड इन वाटर, आप ये जो सोल्यूशन बन रहा है, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. अब आपको पता है कि प्योर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है. आपको एक बार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है तो आप डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट,
ये फाइंड आउट कर सकते हो। हमें ये फाइंड आउट करना है इसका अननोन मॉलिक्यूलर वेट। ओके ना, फिर अब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, हम मानते हैं चलो कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो वेंट ऑफ फैक्टर उस केस में 1 होगा, इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सो ये जो डेल्टा टी बी है दिस इज इक्वल टू के बी into number of moles of solute will be equal to weight of solute divided by molecular weight of solute into weight of solvent in kg। अच्छा, यहां पे weight should be in grams। अब आपको molecular weight unknown है ना, so basically what you can do is आपको डेल्टा टी बी यहां से मिल गया, के बी तो आपको पता है कि के बी की वैल्यू जो होती है वो बस सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो आपको इसकी वैल्यू पता है। वेट ऑफ दिस सोल्यूट आप मेजर कर सकते हो कि आप कितना सोल्यूट इसमें डिसॉल्व कर रहे हो, सो वेट हमें पता है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपने पानी कितना दिया हुआ ये भी आपको पता होगा, सो इवन यू नो दिस, सो यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ओके, सो प्लीज नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला। So delta TB is equal to Kb into number of moles of solute divided by weight of solvent in kgs, and ये Kb जो होता है it only depends upon the solvent, it does not depend upon the solute। आप solvent change करो, आप पानी के जगह पे बेंजीन लो तो obviously Kb की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ओके फाइन। अच्छा, कुछ अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ओके, सो पहले तो ये है कि Kb मैंने आपको बताया कि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो केबी जो है इट इज, इसका एक्सप्रेशन ये होता है आर टी बी स्क्वायर एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। नाउ व्हाट डज ईच थिंग मीन? सो डेल्टा एच पी, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, इट मीन्स molar enthalpy of vaporization। When I say molar enthalpy of vaporization, इसके जो यूनिट्स होंगे इट विल बी इक्वल टू, एंथैल्पी के यूनिट्स होते हैं कैलोरीज या जूल्स, एंड ये मोलार है तो कैलोरी पर मोल और जूल्स पर मोल। ठीक है, TB, when we talk of TB is nothing but boiling point of pure solvent, pure solvent। Okay, this should be in obviously in kelvins। अच्छा, M जो है, M is molar mass of solvent, इन ग्राम्स पर मोल। ठीक है, उसके बाद आता है आर, आर इज बेसिकली वो गैस कांस्टेंट जो होता है, तो इट हैज, गैस नहीं है तो यहां पे, बट इट हैज द सेम वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन और 8.314 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, you can also write this delta H of vaporization upon M। See, delta H of vaporization upon M, delta H of vaporization के यूनिट्स क्या होता है? It is let's say calories per mole, and M is molar mass, that is grams per mole। मोल और मोल कट हो जाएगा, दिस इज कैलोरीज पर ग्राम, दिस इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके यूनिट भी यही होता है, वेपराइजेशन, दैट इज LV। ओके, सो अब आपका जो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी दिस, R TB square divided by 1000 M upon delta HV, you can also write this as 1 by LV, where LV is latent heat of vaporization.
नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों जो नंबर, ये तो कांस्टेंट है एंड ये नंबर्स ये बस सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड ओनली ऑन द सॉल्वेंट. ओके फाइन. वन फाइनल पॉइंट नाउ, हमने ये कहा था कि आपका वेपर प्रेशर कम होता है सोल्यूशन का, इसलिए जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज होता है. अब मान लो कि अगर जो वेपर प्रेशर और कम हो रहा है तो व्हाट यू वुड रियलाइज इज कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होगा. सो आई कैन से दिस, ये चीज जो है ये मैं यहां पे कह सकता हूं वन फाइनल पॉइंट, दैट the increase in the boiling point or the elevation in boiling point is directly proportional to the lowering in vapor pressure. आपका वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा. इज दिस फाइन? ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके अब इस पे आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर बचे हुए 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.